Welcome back to Being Banker. This is a video regarding data interpretation. So I'm starting this series of data interpretation, and this is the set 1 of the data interpretation. I have taken this set from SBI Prelims 2019. Okay, this is a very easy set, so don't think that it is easy so we can skip it. Still you can do it for practice purpose. Okay, so for basic understanding I have took this set, so it make you to understand how to solve a question, how to approach a question, and how to solve it fast. Okay, and what are the calculation tips. I will give everything in this video. So let us start the question. So as we can see, there is a table given over here. So let us start first with the instructions given above. Okay, the table shows the total number of 5 different products sold on 4 different days of a week. Okay, so this is the product A, B, C, D, and these are the days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, read the following. I have made a mistake here. Read the data carefully and answer the following question. Okay, so let us see the data first. Okay, because it is written, read the data carefully. So it is means it is written, so it has some meaning. Okay, so we have to first analyze the data. As soon as you can analyze the data, you can easily solve it. Okay, so on Monday means the products and the days. Okay, so on Monday, the number of products sold of A is 21 and B is 27, C is 24, D is 26. Similarly on other days. Okay, so let us start with the first question. Total of products E sold on Monday is 21 more than the total. Okay. So let us start with the first question. Total number of products E, ठीक है, sold on Monday is 21 more than the sum of product A and C sold on Monday. Okay, find the number of product E sold on Monday. So in the instruction itself, it is written 5 different products, and we can see here only 4 products. So there is an extra product E. Okay, it is not mentioned in the table, but it is mentioned in the question itself. Okay, let us read the question again. Total of product E. Okay, so total number of product E on sold on Monday. Okay, Monday means here. Okay, is 21 more than the sum of product A and C sold on Monday. So total number, what is the sum of A and C sold on Monday? 21 plus 24, what is it? What it will become? 45. And E is 21 more than that. Okay, so what will be the answer? It is 66. Okay, find the number of product E sold on Monday. So here answer will be 66. Fine, easy question. Okay, let us go to the second question. Find the ratio between the product C and, okay, first understand the thing that whenever a ratio means we have to find a ratio, then we means many of them have confusion that means a ratio between whom and whom. Okay, तो जहाँ पे भी 2 लिखा रहेगा रेशियो में, ये थोड़ा सा ट्रिक होता है कि जहाँ पे भी 2 आ जाएगा बीच में, रेशियो के बाद कहीं पे भी 2 आएगा, मतलब कि 2 से पहले जो चीज़ें हैं और 2 के बाद जो चीज़ें हैं उसमें से हम लोग को रेशियो फाइंड करना है. तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं. फाइंड द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट सी सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड ट्यूसडे टुगेदर टू द प्रोडक्ट बी सोल्ड ऑन द सेम डेज. ठीक है, तो हमको क्या बोला है कि हमको किसका रेशियो फाइंड करना है. ठीक, प्रोडक्ट सी सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, तो सी का वेडनेसडे और ट्यूसडे को क्या सेलिंग रही है? 40 प्लस 35 दैट इज 75. ठीक, टू द प्रोडक्ट बी सोल्ड ऑन द सेम डेज, बी का सेम डेज मींस वेडनेसडे एंड ट्यूसडे. ओके, तो बी का क्या रहा है? 30 प्लस 20 दैट इज 50. यू कैन कैंसिल दिस. 5 10 5 3 मीन्स 25 3 भी हो सकता है, 25 2 भी हो सकता है. सिंपल वे में 3:2. ओके, द रेशियो इज 3:2. फाइन, let us move on the next question. Third question, what is the average of the product C sold on Monday, Tuesday and Wednesday? तो हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालना है.
ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। हमको पहले क्वेश्चन में सिंपल था, एडिशन था सिर्फ। सेकंड क्वेश्चन में हमको रेशियो देखने को मिला। थर्ड क्वेश्चन में हमको एवरेज देखने को मिला। ओके, सो व्हाट इज द रेशियो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट सी सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहला कि हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज ऑफ सी सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे को कितना बिका था, 24, 40 एंड 35। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 24, 40 एंड 35, 9, 47, 9। ओके, एंड एवरेज निकाला तो 3 यहाँ पे हैं, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, व्हाट विल बिकम 33। ओके, सो इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आंसर विल बी 33। व्हाट इज द एवरेज, 33। अब दूसरे तरीके से हमको इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, दूसरा तरीका ये होता है कि सपोज 3 आइटम्स का हम लोग को एवरेज निकालना है। एक है 24, दूसरा सपोज 27 और तीसरा सपोज 36। ओके, अब एक तरीका ये है कि हम इन तीनों को ऐड कर दें, फिर डिवाइड बाय 3 कर दें। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहीं पे माइंड में ही 3 से डिवाइड कर दें सबको। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे करेंगे तो 9, यहाँ पे करेंगे तो 12। अब इनको ऐड करना इजी है। ठीक, इनको ऐड करना इजी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको, और फिर हम लोग को जो आंसर मेरा आएगा इसमें, ठीक है, वही मेरा एवरेज हो जाएगा। तो ये दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। प्रोडक्ट ए सोल्ड ऑन ट्यूजडे इज हाउ मच परसेंट लेस देन द प्रोडक्ट सी सोल्ड ऑन दी सेम डे। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो हमने पहले वही अभी मैंने डिस्कस कर रहा था कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज हमको देखने को मिल रही है। तो इसमें परसेंटेज का पूछा गया है। तो परसेंटेज में एक सिंपल सी चीज है कि इसमें जब भी हमको परसेंटेज निकालने को बोलेगा तो हम कभी भी देखेंगे देन, टू, ओके, फ्रॉम, ये सारी चीजें जो भी जहां पे भी आती हैं, परसेंटेज लेस देन, व्हाट इज, सपोज कि लिखा है कि व्हाट परसेंट ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो जहां पे भी देन आएगा तो देन के बाद जो चीजें होती हैं वो नीचे होती हैं। ठीक है, देन के बाद जो भी चीजें होंगी वो नीचे की तरफ होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोचते हैं। प्रोडक्ट ए सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो प्रोडक्ट ए सोल्ड ऑन ट्यूसडे कितना है, प्रोडक्ट ए सोल्ड ऑन ट्यूसडे 28 है, और 28, ठीक, इज हाउ मच परसेंट लेस देन द प्रोडक्ट सी सोल्ड ऑन द सेम डे। तो सी ऑन व्हाट, ऑन ट्यूसडे। तो सी ऑन ट्यूसडे इज 40। ठीक है, अब सी 40 है। अब ये पूछा है कि ये ए जो है, ठीक है, ये सी से, ए जो है वो सी से कितना कम परसेंट उस दिन मतलब वो सोल्ड हुआ। तो कितना पहले देखेंगे कितना कम हुआ, तो 12 कम हुआ। ठीक है, 40 माइनस 28, 12 किससे कम हुआ, 40 से कम हुआ ना, इनटू 100%। ठीक है, अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं, कितना हुआ 30%। मतलब ए जो है वो सी से 30% लेस सेल हुआ। ठीक है, तो ये उसका करने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल प्रोडक्ट ए सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे एंड प्रोडक्ट सी सोल्ड ऑन दी सेम डेज। तो इट इज वेरी सिंपल एडिशन क्वेश्चन, बस हमको इसमें डाटा जानना है। फाइंड द टोटल प्रोडक्ट ए सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। तो ए मंडे और वेडनेसडे को कितना सेल किया था, ए मंडे और वेडनेसडे को कितना सेल किया था, 47। ठीक है, तो हम सिंपल लिख देंगे 47। आगे, एंड प्रोडक्ट सी सोल्ड ऑन सेम डेज। तो प्रोडक्ट सी मंडे और वेडनेसडे को कितना किया था, और 59। ठीक है, तो इसमें हम लोग 59 ऐड कर देंगे, सो इट इज 106। तो इसका आंसर हो जाएगा 106। ठीक है, इसका आंसर था 30%। ठीक है, इसका आंसर था 33, and the second one answer was 3:2, and the first one answer was 66. Okay, so I hope you understood what I was trying to tell you. I mean, it is a very basic DI, but the thing is मतलब कि DI सारी बेसिक होती हैं, लेकिन जो करने का अप्रोच होता है
इस क्वेश्चन को जितना शॉर्ट टाइम में आप कर सको, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। ठीक है, कुछ नुआंसेस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हम नहीं यूज़ कर पाते हो, छोटे क्वेश्चन में यूज़ करके आप उसको जल्दी से कर लेते हो। तो यही इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता था आपसे। अब नेक्स्ट वीडियोस में थोड़े इससे बेटर आपको डीआई देखने को मिलेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।